ओके जो रिजल्ट्स अभी तक हमने जनरल क्वाड्रिलेटरल के डिराइव किए, तब देखते हैं उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में कैसे स्पेशलाइज किया जा सकता है. सो व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? वी नो बाय डेफिनेशन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल which can be inscribed inside a circle. So let us say we have a circle here. और अब इस सर्कल में हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, वही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. सो लेट अस से इस सर्कल में I have a quadrilateral A B C D. So we have a quadrilateral A B C D here. Okay, this is my side A, this is my side B, this is my side C and this is my side D. ठीक है. Let us say इस quadrilateral की एक diagonal है AC और एक डायगोनल है ओके. अब हमें इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी नो हियर? सिंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री व्हिच मींस एंगल A प्लस एंगल C is pi radians and similarly angle B plus angle D is pi radians. Okay. These are the two properties we know because this is a cyclic quadrilateral. Okay. Now, हमें इस cyclic quadrilateral का एरिया पता करना है. So, बताइए कैसे करेंगे? Again, let us apply the same concept. Area of this quadrilateral ABCD is going to be area of the summation of area of triangle, let us say DAB plus triangle BDC. ठीक है. Okay, this is the summation of DAB plus BDC. Now what is area of triangle DAB? It is half AD into sin A. It is half AD sin A. And area of triangle BDC is half BC into sin C. True. And what is sin C? C is pi minus angle A. So I can always write this as half AD sin A plus half BC sin pi minus A. This is area of triangle quadrilateral ABCD. This, let us say this is equals to capital S. So this is half sin A into AD plus BC. So this is how we can get area of a cyclic quadrilateral. It is half sin A into AD plus BC. Perfect. So और इसी को अगर मैं इस ट्राली डायगोनल के हिसाब से कंसिडर करती फॉर विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल, अभी हमने विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल BD देखा, अगर हम इसी को विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल AC देखते तो एरिया क्या हो जाता? उस केस में हो जाता कैपिटल S वुड हैव बीन हाफ साइन B AB plus CD. So these are the formulas using which we can express area of a cyclic quadrilateral. So अगर हमें this is one way, इसमें हमने एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एक्सप्रेस किया. डायगोनल्स के रिस्पेक्ट में अगर एरिया एक्सप्रेस करना हो तो लेट अस से ये एंगल है अल्फा, तो फिर एरिया उसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्रेस होगा जैसे हमने पहले किया था. इट वुड बी हाफ AC इंटू BD इंटू साइन A. So this is just one special formula that comes for a case of cyclic quadrilateral. हमने एक और फॉर्मूला देखा था. एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज S minus A is S minus A, S minus B, S minus C, S minus D minus cos square alpha into AB C D under root. This was area where A was, alpha was angle A plus angle C divided by 2. What is angle A plus angle C here? We know it is pi radians. So this would be pi by 2.
So cos alpha is pi by 2, which implies cos alpha is going to be 0. So what will this formula reduce to? This formula in case of a cyclic quadrilateral will turn down to S is equals to under root S minus A, S minus B, S minus C into S minus D, where S is the semi-perimeter, that is A plus B plus C plus D divided by 2. So cyclic quadrilateral के केस में हम एरिया किन फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं? फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला, दिस वन इज ऑलवेज वैलिड क्योंकि ये तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का भी है, और ये फॉर्मूला जो जनरल पॉलिनोमियल के केस में होता था उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं. हियर इट इज एरिया इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इंटू S माइनस D. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. नाउ इज दिस क्लियर? परफेक्टली क्लियर? नाउ for this quadrilateral, I want you to prove me one result. ठीक है, इस quadrilateral के लिए मैं चाहती हूँ आप मुझे प्रूफ करके बताइए AC into BD, this is equals to AB into CD plus AD into CD or BC. That is, the product of diagonals is equals to this product of the sum of the lengths of opposite side. Product of diagonals AC into BD is equal to sum of the lengths of the products of opposite side. AB into CD plus CB plus BC into AD. I want you to prove me this result in case of a cyclic quadrilateral. Now, आसान सा proof है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक लगाए थे वही यूज होंगे. प्रूफ करके मुझे बताइए. ओके, तो क्या सभी से प्रूफ कर रहे हैं? किसी को से प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? इजी सा प्रूफ है, मैं आपको हिंट देती हूँ. क्या कीजिए, पहले AC के वैल्यू निकालिए और फिर BD के वैल्यू निकालिए और फिर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए एंड यू विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC. AC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इजी है. ये क्वाड्रिलेटरल देखिए ABCD, यहाँ पे हम कोसाइन लॉ लगा सकते हैं. तो लेट अस से दिस ट्रायंगल कंस को ले लेते हैं ABC. अगर मैं इसमें कोसाइन लॉ लगाऊंगी, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC. यहाँ पे मैं कोसाइन लॉ लगाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी? AC स्क्वायर वुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB into cos C. Isn't that so? Into cos B, not C, cos B. So we will write AC square as A square plus B square minus 2AB cos B. Now what would be cos B? Cos B की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? Cos B की वैल्यू निकालने के लिए know one more thing. AC square is even equals to C square plus D square minus 2CD cos C. And what is C? C is pi minus B. True? So we will write AC square as C square plus D square plus 2CD cos B, because cos pi minus B is minus cos B. So let us say this is 1 and this is 2. So can we equate the value of AC square we have got from equation 1 and 2? Equate करेंगे तो मुझे मिलेगा A square plus B square minus 2AB cos B. This guy will be equals to C square plus D square plus 2CD cos B. So from here I can write cos B would be nothing but A square plus B square minus C square minus D square upon 2AB plus CD. This is going to be equals to cos B और let us say 2 cos B, क्योंकि हमें 2 cos B की वैल्यू चाहिए तो हम 2 cos B की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं. So 2 cos B is A square plus B square minus C square minus D square upon 2AB plus CD. अगर मैं cos B की ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ 1 में, तो मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी AC square will be equals to
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos b की जगह what I'm gonna write 2 cos b की जगह we're gonna write a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस ab इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन ए बी प्लस सी डी। ट्रू। अब इसे फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन ए बी प्लस सी डी। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए बी मिलेगा और यहाँ से माइनस ए बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ, फिर यहाँ से मिलेगा बी स्क्वेयर ए बी प्लस सी डी, यहाँ से मिलेगा माइनस बी स्क्वेयर ए बी प्लस सी डी, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विथ ए बी प्लस सी डी माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी okay into AD plus BC upon AB plus CD. This will be equals to my AC square. सही है ना। यहाँ से a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए बी प्लस सी डी मिला, यहाँ से माइनस ए बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मिला, तो कैंसिल हो गया। व्हाट वाज लेफ्ट वाज सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू ए बी प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू ए बी प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा फैक्टराइज करने पे। सिमिलरली हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस डी के बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, हम कॉस ए या फिर कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2AD प्लस BC। तो डिनोमिनेटर में किसकी टर्म आएगी, AD प्लस BC की, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में वील गेट AB प्लस CD इंटू AC प्लस PD। जो हमें यहाँ AC स्क्वायर के लिए मिला था उसी को हमने सिमेट्रिकली BD स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए लिख दिया। और आपको डाउट हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से हम इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लिखेंगे, ट्रायंगल ABD में, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा BD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD cos A, ठीक है। और cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू सोचिए, देखिए cos A की वैल्यू हमें मिल जाएगी और ऐसे 2 cos A, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर अपॉन AD प्लस BC। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हमें BD स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी ये। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज AC स्क्वेयर प्लस BD square. So AC square into BD square. This will be equals to what? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। So this would be, आप देखिए AC plus BD into AC plus BD whole square into AD plus BC, यहाँ से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एंड AB plus CD, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो we'll be left with AC square into BD square is just AC plus BD whole square, or AC into BD will be equals to AC plus BD. Since these are all lengths, so they have to be positive, तो हम यहाँ पे positive sign ही consider करेंगे, which is equals to what is A? It is AB into DC, AB into CD plus BC into AD.
So what I am getting is that the product of diagonals is equals to the summation of the lengths of the product of opposite side. और इसी को हम कभी कभी प्लॉटनीज लॉ भी बोलते हैं. So what does Plotny law says? It says that the product of diagonals is equals to the summation of the length of the products of opposite sides. Clear है? बिल्कुल क्लियर है. तो इसे नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्कम सर्कल कैसे निकाल सकते हैं. तो बेसिकली मैं क्या सर्कम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं. बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल जिस सर्कल में इंस्क्राइब हुआ है, मैं उस सर्कल की रेडियस निकालना चाहती हूँ. हम उसका भी फॉर्मूला देखते हैं, बट उससे पहले आई वांट यू टू नोट डाउन दिस कंप्लीटली. Okay, so note this down and then let us discuss the next part of it, that is how to find circumradius of this cyclic quadrilateral. Okay, so I hope सभी ने अभी तक इसे को नोट डाउन कर लिया होगा. तो अभी हमने देख लिया टॉलमीज लॉ which says जिसके थ्रू हमें मिला product of diagonals which is AC into BD. This was equals to the summation of the product of opposite sides AB into CD plus AD into BC. अब हम क्या पता करना चाहते हैं, अब हम इस सर्कल की, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सर्कम सर्कल की रेडियस पता करना चाहते हैं, या फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हुआ है उस सर्कल की रेडियस पता करना चाहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कैसे पता करेंगे. अब एक चीज मुझे बताइए, हम सभी जानते हैं कि हम ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैसे पता कर सकते हैं. ठीक है, एंड अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, इट इज द समेशन ऑफ टू ट्रायंगल्स. यू ऑलरेडी सीन दिस. तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं इनमें से किसी एक ट्रायंगल की भी सर्कम रेडियस निकाल दूं तो क्या मुझे मेरे क्वाड्रिलेटरल की भी सर्कम रेडियस मिल जाएगी? यस या नो? देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की साइड की सर्कम रेडियस निकाल दूं तो वो ही इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की सर्कम रेडियस होगी. क्योंकि देखिए, ये ट्रायंगल ABC किस सर्कल में सर्कमस्क्राइब हुआ है? ये वाले सर्कल में, और उसी में ये क्वाड्रिलेटरल ABCD भी सर्कमस्क्राइब हुआ है. सो व्हाट वी शुड फाइंड इज बेसिकली the circumradius of either this triangle ABC or this triangle ADC, या फिर इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए. maybe you can even take this triangle ABD BCD, you can pick up any triangle because the point is कि ये चारों वर्टाइसेस जिस पे लाई कर रहे हैं, इनमें से हम कोई भी 3 वर्टाइस पिकअप कर ले. ठीक है, और उसका सर्कम रेडियस पता कर ले. तो वही इस क्वाड्रिलेटरल का भी सर्कम रेडियस होने वाला है. वी अंडरस्टैंड दिस, आई मीन देयर इज नो डाउट इन इट. क्लियर है ये पॉइंट? मैं अभी वापस रिपीट करती हूँ. मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल जिस सर्कल पे लाई करता है, जो वही इनमें से किसी एक ट्रायंगल का भी सर्कम सर्कल होगा. या फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक ट्रायंगल पिकअप कर लूँ, इधर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC और दिस ट्रायंगल BDC और दिस ट्रायंगल DAC. व्हाट आई मीन टू से इज कि इन चारों वर्टाइसेस में से कोई भी 3 वर्टाइसेस पिकअप कर लीजिए और उसका सर्कम सर्कल निकाल लीजिए. सो वो सर्कम सर्कल विल बी इक्वल टू द सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो अगर हम 3 वर्टाइसेस को पिकअप करके एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इट इज इंश्योर्ड कि द 4th वर्टाइस इज गोना लाई ऑन दैट सर्कम सर्कल ओनली. एम आई मेकिंग माय पॉइंट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? Any doubt? Should I repeat? I will repeat once again. See, what I am telling is कि इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस में से कोई भी 3 वर्टाइसेस लेके एक ट्रायंगल बना लीजिए, उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालिए और उसकी सर्कम रेडियस पता कर लीजिए. वहीं इस क्वाड्रिलेटरल के सर्कम सर्कल की भी रेडियस होगी. क्लियर? दिस इज व्हाट वी कैन इवन सी हियर. नो डाउट इन इट. नाउ लेट अस पिकअप एनी ट्रायंगल और उसकी सर्कम रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि वो निकालना हम आसानी से जानते हैं. साइन लॉ यूज करके हम इजीली किसी भी एक ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल फॉर नाउ, ट्रायंगल
ABC, ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में I can write R would be equals to, let us say this side AC upon 2 sin B। मैंने AC इसलिए पिकअप किया क्योंकि AC की वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखी है तो इजीली मिल जाएगी। सो I know what is R is equals to AC। AC की वैल्यू इज AC plus BD into AD plus BC upon AB plus CD under root. Am I correct? It is AC plus BD into AD plus BC upon AB plus CD under root. This is AC. Okay. Upon 2 sin B. Sin B की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हम जानते हैं what is the area of this quadrilateral. Let us say area of this quadrilateral is delta for now. Okay. Delta we know this is equals to half AB sin B plus half CD sin C sin B. It would be half CD sin D, but sin D is what? Pi minus B, so it would be sin B. So I know delta is half AD sin B plus CD sin B. So I know from here 2 delta upon AB plus CD is nothing but sin B. 2 delta upon AB plus CD is sin B. So I can substitute this value here. So let us see what happens on substitution. I hope you note down कर लिया था, मैं इसे erase कर दूँ ना? Okay. Okay, so we get capital R, or the circumradius of this triangle ABC or the quadrilateral ABCD would be half, it would be under root AC plus BD into AD plus BC upon AB plus CD upon sin B की जगह 2 sin B की जगह I can write what? 2 into 2 delta upon AB plus CD. True. So what we get is this would be equals to AC plus BD into AD plus BC into AB plus CD under root upon 4 delta. And what I can write in place of delta, I know delta for a cyclic quadrilateral is S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. So 4 delta can be written as 16 this is equals to capital R, or the circumradius of my quadrilateral ABCD. So this is how we express circumradius of a quadrilateral ABCD. So capital R is given by, देखिए, AC plus BD, AC plus BD, sum of the products of opposite side into AD plus BC, AD plus BC, दो adjacent sides का sum into AB plus CD. Now it is AB plus CD, the other two pair of adjacent sides, upon 16 S minus A, S minus B, S minus C into S minus D under. So this is how we express circumradius of a quadrilateral ABCD, cyclic quadrilateral ABCD. And what is the most important part here is, तो कॉन्सेप्ट समझना था वो क्या था कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का circumradius equals to the circumradius of any triangle picked up from here. क्लियर है कॉन्सेप्ट?
कोई भी छोटा सा डाउट हो तो पूछ लीजिए। सो आज हमने क्या क्या देखा? वी नो, वी सॉ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब कोइंसाइड करते हैं और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल्स का सम होता है n-2 पाई, परफेक्ट, और एक एंगल का मेजरमेंट इसलिए हो गया n-2 पाई बाय n। फिर हमने देखा एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया हम कैसे निकालते हैं। इट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ द एंगल इनक्लोज बिटवीन देम। कंपेयर दिस विद द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स इंटू द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। और द अदर वे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज under root s minus a, s minus b, s minus c minus cos square alpha into a b c d. And what is alpha in this case? It is a plus c by 2. That is half the sum of the two opposite angles. फिर हमने इसी कॉन्सेप्ट को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटेंड किया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में we got area of the cyclic quadrilateral given as half ab sin b plus cd sin b. This is one way, and the other way would be half AD plus CB sin A or sin C, because what is the important point here is angle A plus angle C is pi and angle B plus angle D is pi radian. This is the main property of a cyclic quadrilateral. True. फिर हमने Ptolemy's law देखा, वो which says that the product of diagonals is equals to the sum of the length of the products of the two opposite sides, which means this diagonal dp into AC is AC plus BD. फिर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सर्कम रेडियस निकाल के देखा। नाउ कल इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, और उसी के साथ मैं आपको कल शीट पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो कल से हम हमारा शीट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट कि कल एक बार शीट सॉल्व करने से पहले आप इन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज करके आ जाइए और सारी थ्योरी रिवाइज करके आ जाइएगा, ताकि जब हम शीट सॉल्व करें तो आप उन्हीं के बेस्ड कॉन्सेप्ट्स शीट में अप्लाई कर सकें। सो आज का लेक्चर यहीं पे होल्ड करते हैं। कल से हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, फिर हम शीट डिस्कशन भी स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।